What is a chromosome? In previous animations, we learned that DNA is a spiraling chain-like molecule made up of 4 different types of nucleotides. Scientists have labeled them A, C, T, and G. We also learned that a gene is a long stretch of DNA, a specific sequence of A's, C's, T's, and G's that code for something. What does a gene code for? Usually a protein or a group of proteins, though there are a few exceptions. In multicelled creatures like ourselves, proteins, which are coded for by genes, interact with other proteins and molecules to make up living cells. Cells make up tissues, tissues make up organs, and organs ultimately make up entire living creatures. Individuals have different traits, in this case differences in beak shape, largely because of differences or mutations in their genetic code. These differences can either cause changes in a specific protein shape, and therefore its function, or mutations can change when or how much of a particular protein will be produced. Now that you clearly understand these 3 terms, and by the way, feel free to pause the video to study them if need be, it is now time to talk about chromosomes. A chromosome is an entire chain of DNA along with a group of stabilizing proteins. You may have seen images showing DNA trapped inside a chromosome, sort of like this. This is not how chromosomes hold their DNA. If you were to unravel a chromosome, you would see that it's made of a thread, sort of like a spool of yarn. Zoom in again and you'll see that fiber is a collection of protein orbs called histones, which are wrapped with a string-like structure. Zoom in on that string and you'll find that this is the chain of DNA. It is extremely long, millions of nucleotides long, and often contains hundreds of genes along its length. In this image, we're looking at a chromosome in its condensed, yarn-like form, but chromosomes are only packaged tightly like this when a cell is reproducing. This structure helps with durability as the cell is splitting in 2. For most of a cell's life, however, chromosomes exist in a loose, noodle-like structure along with other chromosomes safe inside the nucleus or centerpiece of a cell. Here is a photograph of an entire set of human chromosomes taken from a cell right as तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो साइंस एंड टेक हम लोग कर रहे हैं। PT 365 का अच्छा कंपाइलेशन है और इसमें अगेन जो पॉजिटिव्स हैं, एनालिसिस हैं, सब हम लोग करते हुए चलेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी पहला टॉपिक है, जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग में CRISPR-Cas9 पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीनोम एडिटिंग होता है कि तो ऑल्टरिंग द DNA। तो अगेन न्यूक्लियस बेसिस को कैसे हम कर सकते हैं, ये चीज़ होती है साइट डिटेक्टेड न्यूक्लियस होती है कि भैया इस पूरे जीनोम में कौन सा साइट आपको डिटेक्ट करके हटाना है, वो सब होता है। तो स्मॉल एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन जो भी आपको करना है कर सकते हैं। SGN3 में फॉरेन ओरिजिन से भी जीन्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, तो यानी फॉरेन जीन से भी कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। CRISPR अगेन क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स इसकी फुल फॉर्म है। CRISPR टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, टेलन रिपीट जिसको हम कहते हैं, ये सब यूज़ करी जा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो अनलाइक GMOs जीन एडिटिंग इनकॉर्पोरेट्स मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया जाता है जीन एडिटिंग में। तो GMOs में क्या है, फॉरेन जीन्स भी होते हैं, तो ये आपको पता हो गया। तो हल्का सा ये मतलब एक तरह से जीन एडिटिंग हम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ जो हमें प्रॉब्लमेटिक लग रहा है उसको हटा दे रहे हैं, नया करेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस कर ले रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और GAC इससे रिलेटेड होती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। CRISPR-Cas9 कैसे, तो वही जैसे मैं बता रही हूँ, आपको कट किया जाता है। Cas9 RNA कॉम्प्लेक्स कट्स द डबल स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA, प्रोग्राम DNA मे बी इंसर्टेड इन द कट, तो ये चीज़ हो जाती है। अब जैसे कॉटन वाला हमारा जो होता है BT कॉटन में बॉलकार्ड 1 बॉलकार्ड 2 टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, नाम हल्का सा पता होना चाहिए। ऐसी मस्टर्ड के अराउंड चल रही है। एक होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, तो कुछ जो एंजाइम जो प्रॉब्लमेटिक है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं। रिकॉम्बिनेंट में होता है अगेन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स, इस तरह से रिकॉम्बिनेशन करके किया जाता है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी सेकंड न्यूज़ है हमारी। तो अगेन मॉस्किटो पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, तो उनके जैसे ताकि फ्यूचर में जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हो वो स्टेराइल हो, ताकि अगेन डेंगू ना हुआ, ये सब चीज़ें होती है। तो अगेन जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, जिसमें जैसे जो डिफेक्टेड होता है वो ऑल्टर्ड जीन होता है, वो स्प्रेड नहीं होता, ये नेचुरली ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
बट अगर इसको कर दे तो अब जो प्रॉब्लमेटिक है उसको ही इंड्यूस करके वो ज़्यादा रेट पे बढ़ रहे हैं, तो डिफेक्टेड हो जाएगी, ताकि अगेन ऑल्टर जीन इज़ ऑलवेज इनहेरिटेड। ये चीज़ हम मेन वो करते मेक श्योर करते हैं। तो दिस इज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो अगेन द मैनिपुलेशन दैट अंडर टेकन। ओके, जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो अगेन किस तरीके से सब चीज़ें हम लोग देखें, पूरा का पूरा जीनोम में, जैसे जीनोम के अंदर क्या क्या आता है, तो क्रोमोसोम आता है विच हाउसेस डीएनए एंड जीन्स। तो सब चीज़ें कैसे करी जाए, उसको पूरा उसकी पढ़ाई लिखाई, मतलब कि कैसे जब एक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग बेसिकली। एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या होता है? तो माइक्रोबियल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम एयर होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। क्या है? द जेनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो अगेन थ्रेड लाइक इसी क्रोमोसोम के अंदर जीन्स आपको मिल जाते हैं, और जीन्स के अंदर क्या होता है? अगेन द आइडिया ऑफ व्हाट द इंफॉर्मेशन जो आगे पास ऑन होने। वाई क्रोमोसोम का क्या है कि हमेशा मेल में ही प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है। तो दैट्स देयर स्ट्रक्चर। देख लीजिए, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम का ये अलग पार्ट में देखिए तो इसे एक सेंट्रोमीटर होता है, टेलोमीटर होता है। टेलोमीटर में हमको यहाँ पे डीएनए मिल जाता है, डीएनए के कुछ सेक्शन को स्पेसिफिक सेक्शन की अगर बात करें तो उसको हम जीन कहते हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं। 3 पेरेंट बेबी, अगेन माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, या फिर आप बात कर लीजिए 3 पेरेंट बेबी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखा जाए तो एक तो पहली बात ये देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ मदर से आती है, तो अगेन मदर लाइन आप ट्रेस कर सकते हैं इससे के थ्रू। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? तो अगेन जो प्रॉब्लमेटिक जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लमेटिक माइटोकॉन्ड्रियल इंपॉर्टेंट है, अगर वो उसमें वो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो उसको चेंज कर देते हैं। डोनर मदर से माइटोकॉन्ड्रियल ले लिया जाता है, और वो फिर मतलब न्यूक्लियस मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का है, माइटोकॉन्ड्रियल दूसरे का है। ठीक है, तो इस तरह से 3 पेरेंट एक तरह से इन्वॉल्व हो गए प्रोसेस में, तो ये चीज़ हो जाती है। ऐसी सेल फ्री डीएनए होता है। ठीक है, रेफर्स टू cell free DNA refers to small fragments of nucleic acid that are released from cells and found outside the cell in blood fluids as plasma, urine and this. So that is there. ये सब छोड़ो। stem cell क्या होता है? तो embryo like structures in the world using stem cell। तो अगेन स्टेम सेल्स को यूज़ करके कैसे एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, ये न्यूज़ में था काफ़ी, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो सेल होता क्या है? अगेन इसमें एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डेवलप हो सके, तो इस तरह से होता है। तो रीजेनरेटिव मेडिसिन क्या होती है? इन्वॉल्व्स अराउंड द यूज ऑफ स्टेम सेल्स लाइक एम्ब्रियोनिक एडल्ट एंड इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स is the process of replacing or regenerating human cells, tissues or organs to restore or establish normal function। तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है जब उसके खुद के पेशेंट के खुद के स्टेम सेल से यूज़ किया जाता है। एलोजेनिक दूसरे के कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो टिपोटेंट होता है जिसमें सारा प्रोसेस सारी चीज़ ऑल 3 एम्ब्रियोनिक जर्म को वो एम करता है, तो जाइगोट स्टेज पे भी करता है। प्लूरिपोटेंट होते हैं जो मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपोटेंट होते हैं जो कर सकते हैं, यूनिपोटेंट होता है जो एक ही तरह का सेल टाइप बन सकता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। शिमरा क्या होता है? तो शिमरा या शिमरिक अगर बात करें is a single organism composed of cells of more than one distinct genotype और genetic makeup। तो one distinct genotype और genetic makeup एक से ज़्यादा होता है तो शिमरा हो जाता है। कार्डसी अगेन कैंसर को ट्रीट करने के लिए बात की जा रही है, तो इसमें अगेन आपको इम्यूनिटी के बारे में, सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। टी सेल्स एंड बी सेल्स, तो टी सेल्स होते हैं जो कि अगेन नेचुरली हमारी बॉडी में एक तरह से वाइट ब्लड सेल का पार्ट होते हैं, ये अटैक करते हैं जो भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ जाती है। तो टी सेल को ही निकाला जाता है, उसको एक तरह से बताया जाता है कि भैया तुमको कैंसर सेल को अटैक करना है, और फिर उसको इंड्यूस कर दिया जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो कार्डसी थेरेपी। ऐसे ही एक आया है नेक्स्ट कार 19, इसके बारे में पता होना चाहिए, लिख के आ जाएगा व्हाट इज़ नेक्स्ट कार 19, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अगेन बी सेल्स को यूज़ कर रहा है, और ये ल्यूकेमिया को टारगेट करता है। अब बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो डायरेक्टली फाइट करता है फॉरेन इन्वेडर्स, वहीं पे बी सेल जो है वो एंटीबॉडी में प्रोड्यूस करके लड़ता है। बस चैलेंजेस क्या होता है? बस साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम होता है, इम्यूनिटी खुद के ही बॉडी सेल्स को भी अटैक कर सकता है, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है इस थेरेपी का। तो ये हमारे पास है, एंड दैट इज देयर। किल स्विच फॉर कैंसर सेल्स, तो CD95 रिस्पेक्टर ऑल्सो रेफर टू एज फास्ट सेंड अ सिग्नल दैट कॉज कैंसर सेल्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो वो है हमारे पास। एक डीप मिशन है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमोलॉजी पार्टनरशिप। तो डीप मिशन की बात करें तो एपिजेनेटिक्स क्या होता है? तो देखो कैसे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस हो सकते हैं, जीन्स एनवायरनमेंट में जैसे जो चेंजेस आ रहे होते हैं उससे हमारे जीन्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि अगेन मिथाइल का कोई प्रॉब्लमेटिक आ रही है तो मिथाइल ऐड हो जाता है, द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू द DNA
मॉलिक्यूल। इससे क्या होता है कि अगेन इट लीड्स टू जीन साइलेंसिंग, तो जहाँ पे भी ऐड हो रहा है वो जीन का साइलेंसिंग हो जाएगा। तो इस तरह की एनवायरनमेंट जो है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे जीन्स और बायोलॉजी को, इस तरह की चीज़ें। तो ये अगेन एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग पढ़ेंगे। इतनी सी ये बात थी और इजी सा ये चैप्टर था, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अगेन इस पे ये जो आइडियाज़ है ना, ये बस आपको हल्का सा लाइन ऑफ थॉट क्लियर होना चाहिए, क्या है ये पता होना चाहिए। घुस के एक एक वर्ड को आप रटोगे वो नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सही कंसेप्ट था। सो दैट इज़ देयर। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। यू ड्रामा। थैंक यू।